Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to do an activity. We are going to do an activity which based on climate zones of earth. So what things we required for this activity? We need some balloons. I take these small balloons. We need some cuttings of blue paper. Some cuttings of green paper like this, and some cuttings of white paper. Okay, like this. We also need some strips, yellow strip, orange strip, blue strip. Okay, and one red strip. You can take any color strip also. So what we'll do first we will do blow a balloon. Now students, I make a model of this earth. You have to make just like this. What I'll do on it? First I take balloon. Okay, first I'll take balloon, then मैंने इसके ऊपर क्या लगाई? जर्मन ग्लू लगाई. You can take any kind of glue. Okay, I'll take German glue and put these paper on the balloon. Okay, मैं इस तरीके से जो है सारे पेपर जो है बलून के ऊपर लगाए हैं, just like this. I draw northern hemisphere, southern hemisphere. And you all know that how two types of hemisphere we have: northern hemisphere and southern hemisphere. And this is the midline is known as equator, and this horizontal line, vertical line is known as axis. Okay. Now paste these all blue paper on the balloon and cover it just like this, just like I cover it. And then I paste green which show what? Which show the land area, like this. Okay, you have to cover whole balloon like this. Okay, now this model is ready. You see, this model is almost ready. Then you will take another balloon and blow it. So you will take another balloon and blow it very small. Okay, हम इस balloon को क्या indicate करेंगे? हम इस balloon को indicate करेंगे our moon. Then the white papers, you have to stick these white paper on the balloon. You will stick German glue, or if you have Sticko, so you can stick Sticko on balloon. Okay, like this. You have to stick these paper on the balloon like this. Okay. As you all know that we have total 3 climate zones: tropic zone, temperate zone and polar zone. So you have to stick like this. I have made a model. See, this indicate what? This is our moon. And how many moon our earth has? We have total one moon, just one moon. Okay, now we have to take another balloon which is of yellow color, which indicate what? That indicate our sun. This is our sun. You can take orange color also. Okay, this is our sun. Now what we will do, take a model of earth. You have to first dry it. Okay, because it's wet ना. German glue के बाद जो है आप लोग का ये paper जो है वो बिल्कुल wet हो जाएगा. You will keep it, and when it will dry, then you will take a red strip. We will indicate red strip with our equator. Now you all know that equator is the midline of our earth. So you will stick the paper into the midline. Okay, now midline. See, midline. Okay, now what you will do, you will take orange color which indicate our temperate zone. ठीक है. Now temperate zone, with this I'll cut a very small. बिल्कुल आपने बिल्कुल जो है बारीक सी जो है वो पेपर लेना है, ताकि इजीली जो है आप लोग का अर्थ जो है कवर हो जाए. ठीक है. नाउ यू विल टेक द थोड़ी सी स्पेस आप लोग छोड़ दें ताकि अर्थ भी हमारी पूरी जो है वो कवर ना हो. नाउ अब आपने जो है टेम्परेट जोन को जो है कवर करना है विथ ऑरेंज पेपर, एंड यू कैन टेक एनी अदर पेपर ऑल्सो. ओके,
कोई भी पेपर जो है आप लोग इजीली जो है ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नाउ सी, दिस इज अवर टेम्परेट जोन। ठीक है, नाउ सी दिस। नाउ take yellow paper and cut it equal, which indicate our, this is our tropic zone, and our with the yellow paper you will take the temperate zone, ठीक है। बिकॉज इक्वेटर के बाद हमारे पास कौन सी जोन आती है, ट्रॉपिक जोन आती है। लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो गई मुझे, ट्रॉपिक जोन आती है। विद द येलो कलर यू विल इंडिकेट द टेम्परेट जोन, ओके। टेम्परेट जोन अब हम इसको इंडिकेट करेंगे। Now I'll paste this. टेम्परेट जोन, ठीक है, ये हमारे पास आ गई टेम्परेट जोन। नाउ एंड एट द टॉप पे कौन सी जोन होती है हमारे पास, पोलर जोन होती है। सो हमारे पास अर्थ जो है ब्लू ही है, तो हम इसको जो है अगर पेस्ट नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, नहीं तो आप लोग जो है छोटा सा पीस ऑफ पेपर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, विच इंडिकेट द पोलर जोन, ठीक है। नाउ अब हम जो है, हमने अभी से वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का किया था, नाउ वी हैव टू डू विद द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो। नाउ सी, northern hemisphere and southern hemisphere. Red color indicate the equatorial zone, then the tropical zone, and yellow color indicate the temperate zone, and at the top we have a polar zone, ठीक है। क्या कहते हैं, southern polar zone and northern polar zone, ठीक है। Our earth is ready now, so I'll take a white paper and I'll stick earth over here, ठीक है। अर्थ को हम जो है एक जगह पे स्टिक कर सकते हैं, ओके। नाउ आई हैव अ सन ऑल्सो। अच्छा, सन जो है वो हमारी अर्थ से 19 टाइम्स जो है वो बड़ा है, ठीक है। बिगर है हाउ मेनी टाइम्स, 19 टाइम्स। अब बलून जो है वो बिल्कुल सर्कुलर जो है ब्लो नहीं हो रहा था, तो वो थोड़ा सा ये ओवल शेप का हो गया, बट इट्स ओके। तो हम जो है अर्थ सन को यहाँ स्टिक करेंगे, देन अर्थ को जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन वी हैव अवर मून ऑल्सो विच इज़ स्मॉलर, और हम मून को जो है अपनी अर्थ के बिल्कुल बराबर स्टिक करेंगे। नाउ स्टिक इट। नाउ स्टूडेंट्स यू सी, आई कवर्ड द सन विद द फेरी लाइट्स विच इंडिकेट द सन, ठीक है। ये मैंने जो है सन बलून था उस पर मैंने जो है ये फेरी लाइट्स लगा दी। आप लोग के पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैंने सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए लगाई है कि हमारे टेम्परेट जोन जो है, हमारी जो अर्थ है उसकी जोन्स में सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ कहाँ जा रही होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो हमारी सबसे ज़्यादा लाइट जो है कहाँ जा रही है, हमारे इन एरिया पे जा रही है, जो कि हमारे ट्रॉपिकल जोन है, टेम्परेट जोन है और इक्वेटोरियल जोन है। और मून के ऊपर जो है बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रही। मून के ऊपर लाइट कब जाएगी, जब ये मून जो है हमारा रोटेट होके आएगा, क्योंकि मून भी जो है रिवॉल्व कर रहा होता है हमारी अर्थ के अराउंड, और अर्थ जो है वो भी रिवॉल्व कर रही होती है हमारे सन के अराउंड में, ठीक है। अब आप देखें नाउ, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो सकता है। अगर आप लोग देखें तो हमारे सन जो है, जो एरिया अर्थ जो है फेस कर रही है हमारे सन का, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लाइट है, और उसके ऑपोजिट क्या है, डार्क एरिया है। तो इट्स मीन कि ये कौन सा एरिया, कौन सी बात आ रही है, हमारे एक्सिस की। हमने एक्सिस भी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि जिस पार्ट ऑफ अर्थ को हमारा सन कवर कर रहा होता है उसको हम क्या वहाँ पे कौन सा टाइम आ रहा होता है, वहाँ पे डे टाइम आ रहा होता है। और उसके ऑपोजिट अर्थ का एरिया वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है, वो हमारा नाइट टाइम इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। अब आप लोग की क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ये टॉपिक हमने पढ़ा तो था, लेकिन हमने इस चीज़ को थॉरली देखा नहीं था कि हम ये कैसे मान सकते हैं कि हमारे टेम्परेट और ट्रॉपिक जोन में सबसे ज़्यादा जो है वो सनलाइट जाती है, पोलर जोन्स में नहीं जाती। तो अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि सन की रेजेस जो है, अर्थ जो है हमारे पास क्या है, टिल्ड है। टिल्ड मतलब थोड़ी सी हम टेढ़ी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रोटेट कर रही होती है, और वो साथ साथ जो है वो रोटेट के साथ साथ स्पिन भी कर रही होती है। किस फॉर्मेशन में, डे एंड नाइट के फॉर्मेशन में। तो आप देख सकते हैं हम लोग की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस कौन सी लाइन्स हो रही है, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन। अगर हमने एक पेपर शीट के ऊपर रखा हुआ है, अगर हम किसी जो है मूवेबल चीज़ के ऊपर रखते हैं तो हमारी जो है नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर भी जो है लाइट जारी होती है। लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन सी लाइन है हमारे पास, येलो लाइन, विच वी इंडिकेट द
टेम्परेट जोन एंड ऑरेंज लाइन वी इंडिकेट द ट्रॉपिक जोन और इक्वेटोरियल जोन रेड लाइन। तो ये तीनों लाइन सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या हो रही है, प्रोमिनेंट हो रही है। तो इट्स मीन सबसे ज़्यादा सनलाइट कहाँ जा रही होगी हमारी अर्थ में, इन 3 रीजन्स में। ठीक है, नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड योर मॉडल इज़ ऑलमोस्ट रेडी। आप लोग बिल्कुल सेम इस तरीके का ही मॉडल बनाएंगे। ओके